آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سابق سیکرٹری اطلاعات و نشریات چودھری سرفراز گجر مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت چودھری محمد الیاس گجر سرپرست اعلیٰ نے کی۔ مہمان خصوصی چودھری محمد اسلم پرویز گجر صدر انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان، محمد عثمان گجر مری غلام سرور، پروگرام کے منتظمین چودھری عبدالمجید گجر سرپرست اعلیٰ انجمن مرکزیہ گجراں، چودھری ایم ارشد ضیاء گجر بانی و چیف آرگنائزر، چودھری محمد سجاد علی گجر مرکزی جنرل سیکرٹری۔ مہمانوں میں چودھری محمد شفیق گجر مرکزی صدر، چودھری محمد شکیل گجر سعودی عرب، محمود گجر نے ایبٹ آباد سے خصوصی شرکت کی، چودھری شفاقت گجر مرکزی نائب صدر، چودھری محفوظ انجم گجر مرکزی نائب صدر، چودھری طارق گجر مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات، چودھری بابا رفیق گجر صدر انجمن گجراں پنجاب، چودھری علی فریاد گجر، چودھری اکرم گجر، چودھری عمار شفیق گجر چیف آرگنائزر یوتھ ونگ، چودھری عدیل گجر صدر یوتھ ونگ، چودھری دلشاد گجر مرکزی سیکرٹری سوشل میڈیا، چودھری سلیم گجر سیکرٹری اطلاعات لاہور، چودھری بلال گجر کھوڑی سیالکوٹ اور گجر قوم کی مختلف شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد بیعت بکل ذرۃ من الفاظ فرما، یا اللہ پاک سب کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک سانو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زبر دیر کی شرمات کی زبر طلب کی غلطی ہوگی کہ میرے مولا درد پر فرما کے تو صحیح یا کرام کل ہو یا الہی اسباب اللہ رسول حضور رسول سرفراز مرحوم کی روح پر سارے ثواب کرنے میرے مولا سرفراز میرے مولا اس محفل جتنے بھی اسی حاضرین ناظرین تشریف بڑے جتنے بھی اس دنیا فانی تو پوچھ کر کے تیرے دربار فرما، یا اللہ پاک سب کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک سانو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا مل کے ایک دوسرے نال پیار محبت شفقت دے نال رہن دی توفیق گجر برادران اتھے اسی اکٹھے ہوئے ہیں اس مرحوم دی یاد والے دلوں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ دعا میری صدا یہ ہے، سرفراز گجر تجھے جنت کی راحت ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میلا میلا کر دی میں بھی آکھاں میلا، اللہ جس میلے وچ یار نہ ہوئے او کی میلا۔ اللہ سرفراز گجر صاحب کے ساتھ ہماری 97 سے ہماری ان کی ملاقات ہوئی وائبر کے ذریعے، جیسے میرے وہ کزن ہیں ادیب جازانی، میرے ریلی ماموں تھے، اللہ نے جنت جگہ عطا فرمائے۔ سرفراز گجر صاحب کے حوالے سے وہ ہمارا بھائی انتہائی درد دل رکھنے والے ایک دوست انسان تھے۔ دنیا فانی ہے چشتی صاحب، یہ عارضی ٹھکانا ہے، جیسے چھوڑ کر ہر کسی کو اپنی اپنی باری پر جانا ہے، مگر دلوں میں ہمیشہ وہی زندہ رہتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کا درد سمجھتے ہیں، بے لوث خدمت کر کے جنت کماتے ہیں۔ وہ صرف چودھری سرور گجر کا بیٹا نہیں تھا، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے۔ ان کے اندر جو عزت احترام محبت کا رشتہ تھا اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہے۔ جو گجر قوم کا ہیرا تھا، آج محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی عضو مجھ سے چھن گیا ہے۔ سرفراز گجر نے ہمیشہ بھائی چارے کا سوچا اور سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی ترجیح دی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک چودھری سرفراز گجر کو کامل معافت فرما اور آخرت کی تمام مناظر آسان فرمائے اور کروٹ جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام لواقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اج سارے دوست بھرا اسی چودھری سرفراز دی مغفرت لئی او دے دعا واسطے 1 سال ہو گیا انہوں
ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, लेकिन सानू उन्होंने नहीं भूलना चाहिए। एक ये सुन्नत रसूल है और ये हमारा मुसलमानों की ये बस सख्त ड्यूटी है कि जिसकी ताज़ियत में हम जाएं सबसे पहले उसकी माग़फ़िरत की दुआ करें। तो मैं भी दिल में दुआ करता हूँ, आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारे भाई सरफराज साहब की बख्शिश फरमाए और उनके जितने अहलो याल हैं बाकी रह गए हैं उनको उनके लिए एक बेमिसाल ज़िंदगी बनने की उनका तौफीक हो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि लैसल यतीमु यतीमुल इल्मि वल अदबी, कि वो शख्स यतीम नहीं है जिसका बाप मर जाए, वो शख्स यतीम नहीं है जिसका बाप मर जाए। यतीम वो है जो इल्म से और अदब से और इखलाक से कोरा है, जिसके दिल में अपने अकाबिर का, अपने वालिदैन का, अपनी बरादरी का एहतराम नहीं है, वो यतीम है। लैसल यतीमु यतीमुल इल्मी वल अदबी, वो कोरा है। सबसे पहले मैं चौधरी सरफराज साहब के वालिद साहब से ताज़ियत और औज़ार अफसोस करता हूँ। चौधरी अरशद ज़ियाद साहब से मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी गायबाना, और मेरी आज तक मुलाकात तो नहीं उनसे हुई, लेकिन ऐसे दो हम उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में और करवर जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और चौधरी साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। की तज़य्यती रेफरेंस की अरेंजमेंट किए हैं और उसके प्यार मोहब्बत में जिस तरह अपने खुलूस नीयत से जो अल्फाज अदा किए हैं, मैं आप सब का तहे दिल से मुश्किल हूँ। शुरा ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी सरफराज साहब की जो खिदमत थी उसके बारे में हम सब दोस्त इकट्ठे हुए थे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके वालिदैन के दुख में शरीक होने के लिए। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। ऐसे दोस्त जो है बरादरी के लिए जो सरफरोश किस्म के लोग थे वो कम ही पैदा होते हैं, तो हम उनको दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके आखिरी दोनों जहान अच्छे करे और उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अरे सर, आपके साथी आपसे बिछड़ गए हैं, उनकी याद में एक ताज़ियती रेफरेंस आपने रखा है, क्या कहेंगे उनके लिए? चंद अल्फाज जो है सर, ये ताज़ियती रेफरेंस कराने का मकसद यही होता है कि उनकी याद ताज़ा हो जाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस जगह अता फरमाए। दुख होता है कि जनाब जब अपना साथी चला जाए, ऐसा साथी जो पूरे पाकिस्तान में हमारा बाजू हो, उनकी याद रखने के लिए ऐसे ताज़ियती रेफरेंस करवाया। और यही ताज़ियती रेफरेंस अक्सर ये कहा जाता है जो अपने कौमों को जब भूल जाते तो वो तबाह बर्बाद होती है। हमने उनके वालिदैन और अपने साथियों का दुख दर्द बांटने के लिए ये सिलसिला शुरू किया था। अरे सर, आप सऊदी अरब से आए हैं स्पेशली जो है ताज़ियती रेफरेंस को अटेंड करने के लिए, आप क्या कहेंगे सरफराज भाई के लिए? चौधरी सरफराज गुजर साहब बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला तो आला मकाम अता फरमाए। आप क्या कहेंगे सर? चौधरी सरफराज गुजर वो बड़ा दबंग दोस्त था, यारों का यार था, और सबसे बड़ी बात वो बड़ा वफादार इंसान था। और याद रखें कि मुझे याद है उसकी मोहब्बतें कि मेरे घर में शादियां थी, अल्लाह की कसम वो शख्स ऐसे जान फिशानी से काम कर रहा था, किसी को महसूस नहीं होने दिया ये मेरा दोस्त है या भाई है। ऐसा गुल मिल के रहने वाला, यारों का यार, जान नसार, बहुत ही दबंग आदमी था। ऐसे आदमी सदियों बाद पैदा होते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी कब्र पर अरबों खरबों बार अपने महबूब की जुल्फ़ के सदके रहमत नाज़िल फरमाए। बहुत दलेर आदमी था चौधरी सरफराज। अच्छा सर, आपके बच्चों की जरा था और बड़ा वक्त, अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा है, क्या कहेंगे आज उनकी ताज़ियत रेफरेंस में आप आए? मैं तो उसे अब तक नहीं बुला सका, अब भी उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। वो भूलने वाला शख्स नहीं था, मोहब्बत करने वाला था। वो उसको अगर कभी याद ना किया जाए दिन में तो वो 3 फ़ोन करता था, किसी वजह से फ़ोन ना उठा सके वो मैसेज छोड़ता था कि मैं आप तक पहुंचने वाला हूं, क्या वजह है। वो बहुत प्यार करने वाला इंसान, हम उसे कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे दिलों में बसता है।
اچھا سر، آپ کا بیٹا تھا، لگتے جگر تھا، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ وہ اس دنیا میں اس وقت تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کی یاد جو ہے ہمیشہ آپ کے دلوں میں زندہ رہے گی. اور کتنے لواحقین جو ہے ان کے جو پیچھے بیٹے بیٹیاں جو ہے ان کے ہیں، اور کیا کہیں گے ان کے بارے میں، کیا جذبات ہیں؟ सरफराज जी मेरा बेटा मरहूम जो है वो बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक था, अपने बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करता था और अपनी गुज्जर कौम के लिए बड़ी अनथक मेहनत करता था. उसके लवाकिन में अभी पीछे उसका वालिदैन, उसका भाई, उसकी बेवा और 2 बच्चियाँ हैं जो 9 साल और 6 साल की हैं. तो इस सिलसिले में जो तजदीदी रेफरेंस उनके दोस्त अहबाब ने अरेंज किया है और उसके लिए जो दुआ की है मगफ़रत की, और उसके लिए जो उसके अल्फाज अदा किए हैं उसकी मोहब्बत में और याद में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ. सरफराज भाई मेरे से 15 साल बड़े थे, लेकिन कभी मुझे ये कभी महसूस नहीं हुई कि वो मुझसे 15 साल बड़े हैं. इस तरह के जिस तरह हम दोनों ये 2 उंगली हैं, इस तरह हर बात उससे शेयर करनी, हर बात उसने मेरे से पूछनी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना तो उसको मैंने फ़ोन करना, उसने इतना ही कहना सांभ लांगे, बस इतनी बात उसने मेरे से करनी. और बहुत ही शफीक इंसान, हंसमुख, कभी उसने मुझे डांटा या कभी बड़े भाइयों वाला रोब नहीं उसने मुझे दिखाया. और मेरे साथ फूलों की तरह मुझे रखता था, बेटों की तरह मुझे रखता था, वो भाइयों की तरह और बेटों की तरह मुझे रखता था. अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसकी बख्शिश फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती. सरफराज भाई मेरे बड़े भाई थे, बहुत ही नहायत ही शफीक इंसान थे. उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. कोई भी मालूमात, कोई भी बात करनी होती तो बिला झिझक वो मुझे मशवरा दिया करते थे. मेरे बड़े भाई थे, मेरे उस्ताद थे, यहाँ तक वो निंजा के ब्लैक बेल्ट भी थे. उन्होंने मुझे गेम में बहुत सपोर्ट किया कि मार्शल आर्ट में कैसे करते हैं, तकनीकें वगैरह जो मामला सारे उन्होंने मुझे दिखाया. और जैसे कि हमारी तंजीम है ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन, हमने किसी की मदद कैसे करनी है इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया कि हमने किसी तरह बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करनी है और किस तरह इसी इल्म को आगे हमने ट्रांसफ़र करना है. इसलिए उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमें उनकी बहुत इस दिन हमें उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है. लेकिन ये हम प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम उनकी याद ताज़ा करें ताकि वो हमारे दिलों में बसे रहें, हम उनको याद रखें, उनकी वो किए हुए काम उनके जो हैं वो उनको हम सोचें वो क्या किया करते थे, उसी को हम आगे ट्रांसफ़र करें कि हमने कैसे वो काम करने हैं, कैसे करने हैं. लेकिन उनकी हमें कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो हमें हमारे दिलों में अभी तक वो बस रहे हैं, लेकिन कमी तो उनकी कोई नहीं पूरी कर सकता. ज़ाहिर है जो चला जाता है उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता. हर एक बंदे ने आना है और जाना है, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है, हर किसी ने जाना है. लेकिन हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं. अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके सब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए.